हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये चैप्टर में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इज आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इन नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो, इन 12th ऑल्सो पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. So in sexual reproduction in flowering plants, today we will cover flower, about stamen, microsporangium and pollen grain. So let's start with flower. First of all, what does a flower consist of? A flower consists of sepal, petal, stamen and carpel. So a flower consists of sepal, petal, stamen and carpel, and the male reproductive part of a flower is known as stamen. तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर को क्या बोलते हैं? स्टेमन. एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड कार्पल. और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है उसको क्या बोलते हैं? कार्पल. एंड फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर वो साइट है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बिकॉज फ्लावर कंटेन करता है द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, दैट इज द फीमेल एंड द मेल reproductive part of a plant is present in flower only. So this flower is the site of sexual reproduction. Basically, androecium consists of a whole of stamens representing the male reproductive organ. तो जो androecium होता है that consists of the whole of stamens. Androecium consists of the whole of stamen and it represents the male reproductive part of a flower, and the gynoecium, which is the female reproductive part of a flower. Then about stamen, microsporangium and pollen grain. Stamen consists of anther and female. Stamen is the male reproductive part of a flower, and it consists of basically two parts, that is anther and filament. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of a flower. तो जो end होता है filament का, that is attached to a thalamus of the flower. Thalamus, or you can say petal of the flower. A typical angiosperm anther is bilobed. और जो anther होता है angiosperm में, typical anther जो angiosperm का होता है जनरली वो bilobed होता है. एंड bilobed मतलब नाम से पता चल रहा है दो lobes होता है anther का. The anther is a four-sided tetragonal structure consisting of four microsporangia located at the corners, two in each lobe. तो एंथर जो होता है वो डाइथिकस होता है. इट इज बाइलोब्ड, इट इज कंटेनिंग टू लोब्स, और ईच लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो प्रेजेंट होता है. तो टोटल एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है. द माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप एंड बिकम पोलन सैक्स. और यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो है फर्दर डेवलप करता है एंड फॉर्म करता है क्या? पोलन सैक्स. So here you can, in the diagram you can see the structure of stamen. The stamen basically consists of the long tube which is known as the filament, और ये bilobed structure which is known as anther. Basically anther का दो lobes होता है, and each lobe of anther contain microsporangia. Each lobe of anther contain microsporangia. तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं? टोटल 4 microsporangias are present in anther. So inside the anther you will find microsporangia. Now the structure of microsporangium. What is the structure of microsporangium? The microsporangium basically it is surrounded by 4 layers. इसमें 4 layers होते हैं. What are those? Epidermis, endothecium, middle layer और tapetum. So this is structure of microsporangium. Microsporangium कहाँ प्रेजेंट है? एंथर के अंदर जो लोब्स हैं, लोब्स में ही 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं. एंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर सीबीएसई एग्जामिनेशन ऑल्सो. ओके, एंड इससे क्वेश्चंस बनते हैं नीट एग्जामिनेशंस में भी. ओके, सो जनरली दिस माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स. इट हैज, दैट इज द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम. एंड ये जो 3 लेयर है, ये 4 में से जो 3 लेयर्स है, दीज 3 लेयर्स, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन. It helps in the protection and it also helps in the dehiscence of anther with the release of pollen grain. तो बेसिकली ये जो है एंथर के dehiscence में हेल्प करता है in order to release pollen grain, और प्रोटेक्शन का मेन रोल प्ले करता है. And if we talk about the tapetum, it is the innermost layer of the, सबसे अंदर का लेयर जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का, that is the innermost layer is known as the tapetum,
And what is the important function of tapetum? This tapetum provides nourishment or nutrition to the developing pollen grain. So this tapetum, question related to tapetum, that is what is the function of tapetum, is frequently asked in your examination. Tapetum से questions आते हैं. So tapetum का function क्या हो गया? This tapetum provide करता है nutrition और nourishment to the developing pollen grain. जो पोलन ग्रेन, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो पोलन ग्रेन डेवलप कर रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है दिस टेपेटम. नाउ a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. So this is very important. माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम कहा हुआ, एंथर के लोब्स में प्रेजेंट होते हैं. एंड माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होता है विच इज नोन एज स्पोरोजेनस टिश्यू. ये स्पोरोजेनस टिश्यू में ही कुछ सेल्स होते हैं जो एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम करते हैं. माइक्रोस्पोर मदर सेल नाम से पता चल रहा है, एज द नेम इट सेल्फ इज सजेस्टिंग, दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल will ultimately lead to the formation of microspore. So this within microsporangium you will find the sporogenous tissue is there, और ये sporogenous tissue के कुछ cells will function as a microspore mother cell, और फिर ये microspore mother cell में meiosis होगा to form microspores, and each microspore mother cell में which is a diploid cell, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो मियोसिस होता है तो उससे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और ये चारों हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जो है अल्टीमेटली डेवलप करते हैं किसमें? पोलन ग्रेन में. अल्टीमेटली इट फॉर्म्स द पोलन ग्रेन. So here you can see the structure of microsporangium. So you can see it has 4 layers, that is epidermis. You can see in the diagram the structure of microsporangium. It has 4 layers, that is epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. Now the function of this epidermis, endothecium, middle layer is in protection, or it helps in the dehiscence of anther with the release of pollen grain. And if we talk about tapetum which is the innermost layer of microsporangium, तो microsporangium के सबसे अंदर वाले लेयर को क्या कहते हैं? tapetum. And the main function of tapetum क्या है? main function nutrition provide करना developing pollen grain को. So this tapetum provides nutrition or nourishment to the developing pollen grain. Then next is microsporogenesis. Microsporogenesis, as the name itself suggests, microsporogenesis, that is the formation of microspore from microspore mother cell. अब ये microspore mother cell कहाँ है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है, और ये इसका नेचर क्या है? इट इज डिप्लॉइड. सो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उस डिप्लॉइड सेल है, इसमें क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, एंड ईच हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स will ultimately form pollen grain. So microsporogenesis is the process of formation of microspore from microspore mother cell. और ये microspore mother cell कौन फंक्शन कर रहा है? स्पोरोजेनस टिश्यू जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है, वही फंक्शन करता है एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल. As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad. तो ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, दिस स्पोरोजेनस टिश्यू ओनली एक्ट्स एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल. ये स्पोरोजेनस टिश्यू ही माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में फर्दर क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. Each cell of a sporogenous tissue can act as a microspore mother cell. तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, उसका हर एक सेल में कैपेसिटी होता है कि वो फंक्शन करे एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल. इट इज डिप्लॉयड. एंड देन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर बनना फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर का फॉर्म होना फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. The microspores, as they are formed, are arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetrad. तो जैसे ये माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ये 4 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं. इस तरह से 4 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? माइक्रोस्पोर टेट्राड.
और ईच माइक्रोस्पोर क्या है, हैप्लॉइड है, बिकॉज ये मियोसिस से बना हुआ है। तो ये इस तरह से लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू अ पोलन ग्रेन। तो ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से जो चार माइक्रोस्पोर बना, बेसिकली दे आर हैप्लॉइड एंड दे आर अरेंज्ड इन अ लेयर, सो कॉल 4 लेयर्स में अरेंज होते हैं, 4 सेल्स बनते हैं, इस तरह से माइक्रोस्पोर टेट्राड में अरेंज होते हैं। और जैसे ही एंथर मैच्योर करता है, ये जो चारों माइक्रोस्पोर हैं ये क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन, अल्टीमेटली फॉर्म्स पोलन ग्रेन। Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. Now pollen grain. Pollen grain. Pollen grain represents the male gametophyte. तो जैसे कि अगर हम बात करें मेगास्पोरोजेनेसिस की, तो इन केस ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर बन रहा था, मेगास्पोर मदर सेल से, और ये मेगास्पोर अल्टीमेटली एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट बनाती है। इन केस ऑफ फीमेल दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, जो कि एक मेगास्पोरोजेनेसिस जो कि किस में हो रहा था, ओव्यूल के अंदर, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है। लेकिन यहां पर क्या होता है, दिस पोलन ग्रेन ये क्या फॉर्म करता है, दिस रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट। और पोलन ग्रेन जो है इट हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। ये जो पोलन ग्रेन होता है इसका 2 लेयर्स होता है। आउटर लेयर को बोलते हैं एक्साइन और इनर लेयर को क्या बोलते हैं, इंटाइन, है ना। अब जो एक्साइन है, जो आउटर लेयर है, वो बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। आउटर लेयर ऑफ एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है। और ये स्पोरोपोलिनिन बहुत ही टफ मटेरियल है, बहुत ही रेजिस्टेंट मटेरियल है। आज तक कोई एंजाइम नहीं डिस्कवर हुआ है जो कि ये स्पोरोपोलिनिन को डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये एक हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करता है एंथर को, एक्साइन जो है और इंटाइन। बेसिकली एंथर जो है इसका 2 लेयर है, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, जो कि हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल है। इट इज रेजिस्टेंट टू एनी केमिकल, एल्कली, एसिड्स एंड ऑल, ओके, स्पोरोपोलिनिन। एंड दिस स्पोरोपोलिनिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, एंड दिस स्पोरोपोलिनिन जो है वो विथस्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। Pollen grain exine has prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent. जो पोलन ग्रेन का आउटर कवरिंग है एक्साइन, उसमें छेद होता है प्रेजेंट। जो पोलन ग्रेन का आउटर कवरिंग है उसको क्या कहते हैं, एक्साइन। सो इट हैज सम होल्स और यू कैन से अपर्चर्स विच आर नोन एज जर्म पोर्स। और ये जर्म पोर वो रीजन है जहां पर एक्साइन में एक यू नो अपर्चर होता है, होल होता है, और ये वो रीजन है जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. पोलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जा सकता है फॉसिल्स के फॉर्म में, बिकॉज उसके पास क्या है, पोलन ग्रेन्स के पास क्या है, स्पोरोपोलिनिन, विच इज हाईली रेजिस्टेंट मटीरियल। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। तो आउटर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन उसको हम लोग क्या बोले, एक्साइन, जो कि स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है, और इंटाइन जो किसका बना होता है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। और सो दिस यू हैव टू लर्न, ये इंपॉर्टेंट है एंड इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, और इंटाइन जो कि इनर लेयर है पोलन ग्रेन का, वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells. Mature pollen grain के पास 2 सेल होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा क्या होता है, जेनरेटिव सेल। तो मैच्योर पोलन ग्रेन के पास 2 सेल होता है, it contains 2 cells, that is vegetative cell and generative cell. The generative cell divides mitotically to give rise to 2 male gametes. Okay, अब ये generative cell जो होता है उसके अंदर माइटोसिस होता है, वो माइटोटिकली डिवाइड करता है टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। दिस यू हैव टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है कि जेनरेटिव सेल जो है वो क्या बनाता है, 2 मेल गैमेट्स। जेनरेटिव सेल फॉर्म्स 2 मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सर्व एज फूड सप्लीमेंट। पोलन ग्रेन जो है वो न्यूट्रिएंट में रिच होता है एंड सो इट कैन सर्व एज अ फूड सप्लीमेंट। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की, ओव्यूल के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।